Good morning, viewers of Assertive Ayurveda. I, Dr. Vaishali Gupta, PG First Year Scholar of Department of Rashas and Bhaisaj Kalpana, Banaras Hindu University, Varanasi. Welcome to all of you. I hope you all are doing well and feeling energized for today's session. In the continuation of wonderful YouTube lecture series of Sir, I am back with some questions related to personality development and how important personality development in our life. Thank you so much, sir, for giving me this opportunity. I am truly privileged to be your host for today's session, sir. Sir, could you please give me permission to proceed with the questions? I say always there is no need of any permission. It is part and parcel of our motto for which this channel we have started. And you students you co-learners are equally important and involved in the whole process which is going on since last 1 month. So welcome Dr. Vaishali to this session and namaste, Abhivadan, Abhinandan to all our learned viewers. So today it is something different questionnaire and I hope you will enjoy this. Let us start what Dr. Vaishali is. Please proceed. So without any delay, let's get started with first question. My first question is, sir, what is personality? Can you define what personality is? Is it just improving external appearance? Your first question is equal to a nuclear bomb having this potency in positive way, the nuclear energy. Certainly I'm not talking about any destructive application of any technique that we call nuclear bomb or the atom bomb, but in the same way there is something which is very much positive from these all. And so you said what is personality? So it may be defined. Yes, it may be defined, Dr. Vaishali, but the question is how it may be defined. So if we will try to define it, let me Ustad Amjad Ali Khan, instrument voice of the Sarod, be little bit little bit medium, so that, but it is completely okay. Yes, this is right, because music is the part of my personality. So I always need music to perform anything, whether to prepare the document or for any interaction or whatsoever the things, even the classes. So finally, you asked me what is personality. Yes. So I'm trying to answer it, but it is not final. The personality is a phenomena which may be defined as your inherited intrinsic characters of integrity, dignity, honesty, and the characteristic features, your SOP to perform an assignment. And that assignment may be of the academic nature, that may be of organizational nature, that may be of anything which needs just a very good management, right from your professional area, your professional health care, and then from patient care to and big event of the international seminar or anything else. So the personality is not just something which is the personality. No. Personality is the inherited intrinsic character. Just I repeat, and I may patent this definition, right? So your integrity, dignity, your SOP for completion of any task assigned to you, your dedication in the compliance of instructions to you by your seniors or some loving juniors to you are saying, madam, just how to do it, and then with the full passion you are involved with your juniors and you are performing that all these things are all together is personality. What you said in the end, whether it is the external appearance, not at all.
external appearance is just 1/10th part of a personality. Yes, it is the first impression. How we look, that is the first impression. But you know, the look is not important. The important thing, when you open your mouth and the way you are putting or saying or talking, all these things are different. And in the different circumstances, suppose you are presenting your case to your head of the department or director of the institute or anywhere or in a selection committee, then everything will be different as per the context, as per the circumstance which is required there. So this is the point where everyone has to develop, compulsorily has to develop. So it is a just appearance is the 1/10th, but your selection of words, your language, your body language, not only your the linguistic language, your body language, as well as your concept of perceivedness, your concept of showing your involvement, and of course what I just counted in the beginning, your inherited intrinsic integrity, dignity, and your dedication to the cause with a unique SOP to perform that. That is the point where we need attention, and that is called the personality development. Even we teachers have attended many programs of the personality development in the FDP, Faculty Development Programs of the Institute of Management Sciences at Banaras University. When I was assistant professor, I attended two programs in the Institute of Management. So today you look like an internee of the Institute of Management. You just MD Ayurveda scholar, but you are presenting yourself in the way that have enhanced your persona. And this attire is as per the need. This attire is demand of just this hour. So I can say that you are fulfilling a criteria of good personality, right? So what is next? As I said, personality development is not just improving external appearance, it is developing inner self too. Yeah. So my next question is, sir, what factors influences the personality of an individual and how they can affect our personality? When Vaishali, you are asking about the factors, I have counted that your first thing in the academia is the, of course, knowledge. Of course, knowledge. I repeat, knowledge. But knowledge getting from a lot of sources. There is a lot of sources to get the knowledge, right from net to the teachers in the classroom or group discussion or anything else. So you can gain knowledge from anywhere, but how you present knowledge, here your personality involved. How you have perceived that knowledge, here your personality involved. How you are executing that knowledge in your personal deeds, here is your personality, right? And these things are something different. See, personality of a film star should be of different kind. Personality of a cricketer should be of the different kind, right? Personality of a musician is having some different combination. And all things are not universal. That this is the criteria and that fellow or that person will be called as a good person. No, it is totally depending on the field at the thrust area where you are working. Suppose you are an Ayurvedist, not suppose, you are a truly Ayurvedist, then demand of your personalities are something different from a politician or from a capitalist or from an industrialist.
The personality is different for the different platforms. One thing, Baisali, I thought in the morning of today, okay, I shall not go with the theory. There is a lot of books on the personality, how to improve your personality. There is a very popular writer like Shiv Kheda, Arvind Chopra, and the many more books you can see here in my cupboard. And see here the whole Harvard. This is the Harvard book publications on this career and this on diversity. All many books are here, and these books and the rules of management, rules of the work, rules of the love, many things are here, and all these are there in the book theory books. If you go to the any bookshop, even in Varanasi at the Assi Ghat, and in the, you will get all these books which are known as the motivational books, inspirational books, okay, or the required for the this personality development, and of course on the W.H. Smith book stalls, these things are in abundance. You can choose and select and you can read. I read all that. Yeah, I read. But the point is, I had just decided to talk in the practicality. So when you are saying ki, how it differ and what are the factors, just I am counting before you 7 names. Yes, viewers, all my learned viewers, and if you are an UG scholar or the PG, PhD scholar, or even the faculty, the young faculty or the old faculty, personality के लिए किसी भी समय कभी भी आ सकता है. DGP of the Bihar Police, a good IPS officer, is now Gupteshwar Maharaj from Gupteshwar Pandey. That is the sea change in the persona and the personality. Just example, right? So it is not the age bar when you have to develop your personality. That is the demand and the time where you have to perform. That is the personality, right? So just I am saying you the some names, and starting with the paying greatest reverence to our founder, Pandit Madan Mohan Malviya ji. You all viewers think about him. If you are knowing him, not knowing, go to the Google Baba. Then Pandit Bhimsen Joshi. Then Sachin Tendulkar. Then Mahendra Singh Dhoni. I just selected. Then Dr. S. Jaishankar, the Honorable External Affairs Minister of the Union Republic of India, and just he joined and he completed his services as a Foreign Secretary of the Union Republic of India, and this is a unique example. He now holding the office of the Honorable Union Minister of the External Affairs Ministry. Then none other than the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, and of course Sri Rahul Gandhi, right? And finally, I have quoted here a name, I am quoting here a name, that is the Chief Justice of India, Justice D.Y. Chandrachud. Right. See, from Bharat Ratna Pandit Madan Mohan Malviya ji to the CJI, Chief Justice of India at the moment, at the present time, Justice D.Y. Chandrachud, Honorable Justice D.Y. Chandrachud. Right? What is similar and difference in these personalities? Think and answer me, you, Vaishali. This is, you are asking a question, I am asking a question to you. How you perceive that, what is common in these personalities, what I have counted, and what is different? Okay, see, the common of all these 7 names is their dedication to the cause. If Pandit Madan Mohan Malviya ji, Bharat Ratna Pandit Madan Mohan Malviya ji, Maharaj, we call him Malviya ji Maharaj, have the vision to change the society. He left his barristry, advocacy. He was a very famous advocate of that time of the High Court, Allahabad. But he left everything for the cause of the establishment of the Banaras Hindu University with a very clear vision. And we are very lucky that Ayurveda is one
of his visions, where he want to take a good. He established just 5 colleges in the beginning in the concept paper of the 1904, 1912, and the 1916 is the establishment of the year of the Banaras Hindu University by the British Parliament, not the Indian Parliament, and the Act of the Parliament number is 211, right? So here he has the vision, and even for the women studies, he said in the Banaras University will be कला महाविद्यालय, विज्ञान महाविद्यालय, गंधर्व महाविद्यालय, महिला महाविद्यालय, आयुर्वेद महाविद्यालय. तो महिला महाविद्यालय उनके कॉन्सेप्ट में था, आयुर्वेद महाविद्यालय था, गंधर्व महाविद्यालय मतलब इंडियन कल्चर से वो संगीत लेते थे, और इंडियन कल्चर से वो आयुर्वेद महाविद्यालय मेडिसिन के सिस्टम में आयुर्वेद लेते थे. आज इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन मैं पर्सनालिटी बस बात पे जा रहा हूँ कि कला महाविद्यालय और विज्ञान महाविद्यालय, इन पांचों को मिला करके काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनाने का कॉन्सेप्ट उन्होंने 1904 में रखा था, 1904. ही डिड कम टू द पंडित भीमसेन जोशी. नाम सुना है? अच्छा. न भूतो न भविष्यति, और उन्होंने इस संगीत सीखने के लिए, और वो भी ये सारे अवार्डी हैं जो हमारे मालवीय जी महाराज हैं. ओके. उनके संगीत की उनको इतनी धुन सवार हुई कि वो घर से भाग गए. उनका इंटरव्यू मैंने पढ़ा है, यूट्यूब पर है, मतलब सुना है, पढ़ा है, आप यूट्यूब पर देख लीजिएगा. वैशाली और हमारे सारे व्यूअर जो आप देख रहे हैं, बच्चे लोग, उनको ये समझ थी कि उनको संगीत में जाना है, वो घर से निकल गए. ट्रेन में किराया नहीं था उनको जाने के लिए, तो टीटी को उन्होंने गाना सुनाया, संगीत सुनाया, और टीटी से कहा मुझे कलकत्ता पहुंचा दो. टीटी उनको कलकत्ता तक लेके गया. हाँ, फिर ऐसे ही वो मूव करते हुए, और जिनसे वो संगीत सीखना चाहते थे उनके घर में नौकर का काम करने लगे, और संगीत सीखे. और फिर एक संगीत समारोह में उनको, जब मुझे वो सुने हुए वो इंटरव्यू को बहुत दिन हो गया, इसलिए मुझे नाम और जगह का नाम नहीं याद आ रहा है, बस वो कॉन्सेप्ट याद आ रहा है. मैं अगर इसको तैयारी किया होता कि आज तुम ये सब सवाल पूछोगी, तो मैं जानता तो था कि ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे होगा, तो मैंने ये 7 पर्सनालिटी छांटी बैठ करके अभी 1 घंटा पहले, कि मैं ये संदेश देना चाहता हूँ अपने सारे आयुर्वेद के मित्रों को. ओके. तो मैं लास्ट में आऊँगा कि इनमें सबसे कॉमन क्या है. तो लेकिन एक डेडिकेशन तो है ही है, उसके बाद भी एक बहुत कॉमन चीज़ है, वो फॉलो करना होगा सीनियर्स को, हम लोगों को, और आपको भी, आपकी भी जनरेशन को. मिक्स, मैं इस पर आता हूँ, 5 मिनट का समय लगेगा, तब आपका अगला प्रश्न लूँगा. तो पंडित भीमसेन जोशी एक कार्यक्रम का, फिर वो सब सीख करके आ गए और अपनी तपस्या में सफल हुए, और उन्होंने जो है एक उनको सम्मान मिल रहा था बहुत बड़ा किसी जगह पर, कर्नाटक में धारवाड़ संगीत समारोह ऐसे करके था. उसमें पूरे उस समय के मूर्धन्य विद्वान आया करते थे, तो उसमें पंडित भीमसेन जोशी को सम्मानित किया जाना था. तो वो जो कलकत्ता और पंजाब के उनके गुरु लोग थे, जिनके यहाँ वो घर में भाग करके गए थे और सीखे थे, तो वो लोग सामने बैठे थे. पंडित भीमसेन जोशी सम्मान लेने के पहले उनके पास गए, उनका पैर छुआ, तब वो एकदम से थे, गुरुजी मैं आपका नौकर जग्गू. तब वो जाने कि ये मेरा नौकर जग्गू है, जो आज पंडित भीमसेन जोशी है. उन्होंने अपना नाम उनके यहाँ कर दिया. और देखिए उनकी, मैं इसको लास्ट में लूँगा, उनका वो थॉट प्रोसेस देखिए कि सफल होने के लिए उन्होंने क्या किया. नौकर तक बने जा करके, उनके घर में उनके साथ रहने के लिए नौकर बने. और ये भी था कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, वो रहते कहाँ, वो गुरु दक्षिणा दे करके और गुरु जी के घर में आके 2 घंटे का अभ्यास नहीं कर सकते थे. पंडित भीमसेन जोशी की आर्थिक स्थिति ऐसी ही थी कि उनको वहाँ पर रहना था और उनका नौकर बन के ही रहना था. मैंने बताया ना कि उनके पास किराया नहीं था. टीटी जब पकड़ा उनको तो कहे कि हमसे गाना सुन लो, हमसे राग सुन लो. और टीटी भी शायद बड़ा भला मानस था कि राग सुन के उनको पहुँचा दिया वहाँ तक. ठीक है, अब आगे आइए. मैंने तीसरा नाम रखा है यहाँ पर, ये भी भारत रत्न है. सब भारत रत्न की सीरीज ही चल रही है. ये तो बाय द वे इट इज जस्ट ए कोइंसिडेंस, आई हैव नॉट थॉट आउट इट. सचिन तेंदुलकर, देख लीजिए उनकी पूरी जीवन गाथा, कहाँ तक पहुँचे और कहाँ तक पहुँचे. अपने महेंद्र सिंह धोनी जी,
आज भी देखिए वो चेन्नई सुपर किंग या पूरे देश में, और उनकी पर्सनालिटी, इन दोनों की सबकी पर्सनालिटी में कॉमन चीज़ है, मैं वो लास्ट में बोलूँगा, ठीक है। अब आप आइए डॉक्टर एस जयशंकर, जिनके बारे में मैंने पहले ही बात कही। हम उनको बहुत फॉलो करते हैं। हमने यहाँ जितने लोगों का नाम लिखा है उनकी हम जीवनी पढ़े हैं, एक की तो पिक्चर भी देखे हैं, दूसरे की पिक्चर बनी नहीं इसलिए देखे नहीं, महेंद्र सिंह धोनी की, सुशांत राजपूत, चलिए सर वो ये कभी अलग इशू है। तो अपने नरेंद्र मोदी जी उठा करके उनकी भी पूरी जीवनी पढ़ लीजिए, और उनकी पर्सनालिटी कहाँ से कैसे डेवलप की, और सीधे उनका तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि वो राज्य में वो कभी मंत्री नहीं रहे, सीधे मुख्यमंत्री बने, केंद्र में कभी वो मंत्री नहीं रहे, सीधे प्रधानमंत्री बने। हाँ, और राहुल गांधी का भी पर्सनालिटी के लिए मैं उदाहरण दूंगा और बड़े प्रशंसा के साथ दूंगा, जिस व्यक्ति को 10 साल पहले पूरे देश ने पप्पू घोषित कर दिया था ना, हर तरह से राहुल गांधी को पप्पू घोषित कर दिया गया था। आज वो राहुल गांधी 10 साल के बाद भारतीय राजनीति का केंद्र बिंदु है। ही इज सेंटर ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स, आइदर ऑफ द दिस अपोजिशन और दिस सत्ता पक्ष। If anyone is having attention all over world in India after Honorable Prime Minister Narendra Modi, he is none other than the Rahul Gandhi, and that is the change in the personality, right? Yes. Are you perceiving it? Yes, sir. Huh? Rahul Gandhi. And see, today 4th August, when you are recording, it will be aired on the Sunday 6th August. Today is the judgment in the Honorable Supreme Court about that defamation case. See what the judgment will be. But the Rahul Gandhi personality, कहा जाता था कि वो लोग राजकुमार हैं, वो लोग निकल नहीं सकते। उसने भारत जोड़ो यात्रा कर ली, ठीक है, घुटने के इलाज के लिए कोट्टकल में गए, अभी जस्ट 10 दिन पहले अभी मतलब डिस्चार्ज हुए, उनको पिछले संडे को डिस्चार्ज हुए हैं, 5 दिन पहले। प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत तपस्या की है, पूरे भारत में पैदल घूमे हैं, ये भी कंदराओं में रहे हैं, क्या क्या किया है इन्होंने भी। तो मैं एक पर्सनालिटी की बात कर रहा हूँ, मैं राजनीति में किसी का समर्थन और विरोध की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं पूरे सीरीज पंडित मालवीय जी महाराज से लेकर यहाँ तक जो आया हूँ, और फाइनली आज के अपने चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जी के आपने नहीं पढ़ा है तो कोई भी व्यूवर्स, तो आप एक बार पढ़ लीजिए। आप जो भी हो, आपका जो भी थॉट प्रोसेस हो वो एक अलग है, आप उनको अप्रिशिएट करते हैं या ट्रोल करते हैं, वो आपकी अपनी समझ है। लेकिन डी.वाई. चंद्रचूड़ के पर्सोना को देखिए आप, और उनके तो मैं तकरीबन 4-5 एक घंटे के लेक्चर सुन चुका हूँ, जो उन्होंने अलग अलग ओकेजन्स पर दिए CJI होने के बाद। आपको पता है, आप एक बात बता रहा हूँ, उनके 2 बेटे हैं, दोनों एडवोकेट हैं, उनके डी.वाई. चंद्रचूड़ जी के पिताजी भी भारत के चीफ जस्टिस हुए हैं। ये बहुत ही संयोग, और शायद पहली बार है कि पिता भी जैसे कि अमेरिका में है कि बुश फैमिली में वो पिता पुत्र दोनों अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, ठीक है ना। तो ऐसे अनेकों एग्जाम्पल्स हैं, जैसा कि जिसमें पिता पुत्र या पिता पुत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, या अभी भविष्य में कोई नहीं जानता, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करने जा रहा हूँ, राजीव गांधी, और चलिए नाम ना लेना बेहतर है, लेकिन सब समझ चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी। तो एक ये परंपरा चलती है, एक ये थॉट प्रोसेस चलती है। और डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब के जो व्यक्तित्व की बात मैं उठाना चाहता हूँ, ये कि 2 बेटे हैं इनके, अपने बायोलॉजिकल बेटे, बिल्कुल सन, लेकिन इनके पास 2 फोस्टर डॉटर हैं, डू यू नो। और दोनों फोस्टर डॉटर नॉर्मल नहीं हैं, दोनों ऑटिज्म के शिकार हैं। तो रियल सेंस में ये जो पर्सनालिटी है, 1-2 बच्चियों की ज़िंदगी ये बना रहे हैं, जबकि इनके पास 2 बच्चे हैं और बिल्कुल नॉर्मल हैं और बहुत अच्छे। अब इन्होंने शायद अपना ही नियम लगा दिया होगा कि जब तक मैं CJI हूँ तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे। इनके पिताजी ने इनके ऊपर नियम लगा दिया था कि जब तक मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हूँ तुम इंडिया में प्रैक्टिस नहीं करोगे, शायद ये भी लगा दिए होंगे अपने बेटों पे, ठीक है ना। तो ये एक जो मैंने शुरू में कहा, फिर से दोहरा रहा हूँ, और ये मैंने खुद सोचा, कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो पता नहीं मुझे, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि मैं तो इस लाइन पर कॉपीराइट चाहूँगा कि पर्सनालिटी इज़ एन फिनोमिना which reflects your inherited intrinsic
integrity, dignity, your SOP of working, your dedication to the cause, your capabilities in the compliance, the instructions passed on you by your seniors and requested met to you by your loving juniors. So that is the personality. And see this all. चार के चार जो है, ये जो मैंने 7 नाम लिए, इनमें सबसे बड़ी बात थी हम्बलनेस। वहाँ से उठाइए मालवीय जी महाराज से लेकर के चंद्रचूड़ साहब, व्यक्तिगत जीवन में जो हम्बलनेस है, व्यक्तिगत जीवन में प्रशासनिक निर्णय चंद्रचूड़ जी को लेने हैं तो ले रहे हैं, जस्टिस कर रहे हैं। हमारे मालवीय जी महाराज को भी लेने थे तो उन्होंने लिए, कई लोगों को बर्खास्त किया। और तो एक नया सेशन ही हो जाएगा कि उनके जीवनी पर, उनके भाषणों पर काम किया जाए कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय किस तरह से भारत के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। जो प्रोफेसर्स जेल चले जाते थे इंडिपेंडेंस के फाइट में, मालवीय जी महाराज उनके घर का पूरा खर्चा यूनिवर्सिटी की तरफ से दिखाते थे। प्रोफेसर जेल जाते थे यहाँ से कई कहाई बातें नहीं हैं, तुम लोग नहीं जानते होंगे, आप लोग नहीं पढ़े होंगे। विद्यार्थियों ने हड़ताल किया था कि नहीं हमें, मैं पर्सनालिटी की बात कर रहा हूँ, ये पर्सनालिटी का हिस्सा है। मैंने कहा ना कि मैं प्रायोगिक जाऊँगा। विद्यार्थियों ने कहा कि यहाँ से ये भारत काशी हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर से स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन का संचालन न हो, क्योंकि फिर हम जब डिग्री लेके जाते हैं तो हमको नौकरी नहीं मिलती। तो कुछ स्टूडेंट्स गए जो इंजीनियरिंग में थे या साइंस में थे, वो लोग गए उनके पास कि मालवीय जी महाराज से अनुरोध करने कि आपकी विचारधारा है और आप स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले रहे हैं, तो लेकिन उसका गतिविधि जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में ना हो। तो मालवीय जी उनसे मिले, कुलपति थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आज छात्रों की आम सभा करूँगा। तो छात्रों की आम सभा, सभी छात्रों को बुलाया गया काशी हिंदू विश्वविद्यालय में और मालवीय जी महाराज पहुँचे उस जगह पे। सभी लोग सोच रहे थे कि मालवीय जी ऐसा कुछ छात्र हित में डिसीजन लेंगे, कुछ बताएंगे जो उनसे डिमांड की गई है कि नहीं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय को भारत के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का केंद्र बिंदु न बनाया जाए। मालवीय जी ने जब जाकर वहाँ घोषणा दी, उनका अक्षरशः पढ़िए। उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना भारतीय संस्कृति की स्थापना के लिए हुई है। जिसको अंग्रेजों की नौकरी करना है वो विश्वविद्यालय छोड़ के चला जाए। इस विश्वविद्यालय में पढ़ा हुआ छात्र भारत की सेवा करेगा, ऐसी ऐसी घोषणाएं हुई थी। तो ये व्यक्तित्व है, इसको पर्सनालिटी कहते हैं। एक यूनिवर्सिटी, पंडित भीमसेन जोशी की एक संगीत शाखा, सचिन तेंदुलकर के एक अपने गुण बैटिंग लाइनअप में, महेंद्र सिंह धोनी का जो विकेट कीपिंग तो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसका एक सचिन तेंदुलकर वहाँ फेल रहा है, कैप्टेंसी में सचिन तेंदुलकर फेल रहा है। महेंद्र सिंह धोनी तो डबल डेकर, अपने विकेट कीपिंग में भी उनका रिकॉर्ड और एज ए बैट्समैन उनका रिकॉर्ड अलग है, और कैप्टेंसी तो उनकी जैसी रही नहीं किसी की। तो दैट इज़ द पर्सनालिटी। आप लोगों को समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि पर्सनालिटी इससे कहते हैं। उसके बाद डॉक्टर एस जयशंकर, देखिए आप किसी के समझ में नहीं आएगा। जिहाद जिद्दा में यूक्रेन युद्ध की समाप्ति के लिए बैठक हो रही है, यूक्रेन आ रहा है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उसमें रसिया को नहीं बुलाया गया है, लेकिन जयशंकर साहब की डिप्लोमेसी है, वो जा रहे हैं, भाग लेंगे वो। आज की खबर है ये, ठीक है ना। और पूरे भारत ही ऐसा देश रहा जो कि बैलेंस बना करके रखा है इस 1 साल पुराने युद्ध में। रसिया के भी साथ में वैसे ही गलबहियाँ चल रही हैं, यूक्रेन के साथ भी है कि हाँ हम आपके साथ खड़े हैं। तो ये डॉक्टर एस जयशंकर की पर्सनालिटी है। अब नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी के बारे में कोई प्रतिक्रिया न व्यक्त की जाए अभी तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उनकी पर्सनालिटी के दोनों के हिस्से मैंने कहे हैं, क्योंकि इसका मोड़ राजनीतिक हो जाएगा। और DY चंद्रचूड़ जी, आप देख लीजिए उनके पूरे डीड्स, जो भी वो काम कर रहे हैं, सुओ मोटो एक्शंस उनके। आप उनको ये नहीं कह सकते वो किसी का पक्ष ले रहे हैं। अभी हाँ, मैं उदाहरण देता हूँ, मांग की गई कि नहीं, जो हरियाणा में दंगे हुए हैं तो एक विशेष संगठन की रैली प्रदर्शन पर रोक लगा दी जाए। उनके अध्यक्षता में जो आज सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है, उन्होंने रोक नहीं लगाई। सरकार से कहा कि नहीं, वहाँ व्यवस्था करिए, प्रदर्शन करना उनका जनतांत्रिक अधिकार है। तो डॉक्टर वैशाली, मैं इतने बड़े लोगों का नाम क्यों लिया? ये है व्यक्तित्व।
इनका करिए अध्ययन और देखिए कि इनसे आप क्या ले सकते हैं। अब आप मुझसे कहिए कि आपने आयुर्वेद के एक भी आदमी का नाम नहीं लिया, पूछिए, नेचुरल सवाल है। तो आयुर्वेद में भी व्यक्तित्व के बहुत बड़े धनी लोग हैं। अभी मैं इस पर अभी सोचा कि मुझे तो आयुर्वेद के लोगों का भी नाम लेना चाहिए, तो ये अगली श्रृंखला में लूँगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट आज ही नहीं पूरा होगा, इस पर मैं ये मानता हूँ कि क्योंकि आयुर्वेद के लोगों का नाम लेने के पहले मुझे थोड़ा सा नाप तौल करना पड़ेगा, थोड़ा सा मुझे बैलेंस बनाना होगा कि किसका नाम लिया जाए और किसका नाम न लिया जाए, ठीक है ना। तो इसलिए अभी अचानक इस पर मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन हाँ, यहाँ पर मैंने ये जो नाम लिए एक पर्सनालिटी पर लिए कि ये व्यक्तित्व हैं और इन व्यक्तित्व का अनुसरण करना चाहिए। थ्योरेटिकल पार्ट पर मैं नहीं जा रहा हूँ। म्यूज़िक बहुत अच्छी लगती है, अभी कहते हैं हाँ म्यूज़िक बहुत बढ़िया है, लेकिन म्यूज़िक का प्रैक्टिकलिटी बहुत अच्छा है, थ्योरी बड़ा टफ है, राइट। तो अभी मैं जो कह रहा हूँ, आपने एक क्वेश्चन किया, शायद अगला क्वेश्चन मैं आपका नहीं जानता हूँ, लेकिन यहाँ पर चलिए आपका अगला क्वेश्चन भी सुन लेता हूँ, तब इसको उत्तर देता हूँ। प्लीज़ चलिए बताइए, क्या आपका अगला प्रश्न? So my next question is, can personality be changed or just be improved? Yes, I have given a lot of examples to you. Pandit Bhimsen Joshi and Rahul Gandhi and almost Narendra Modi ji bhi also. What he was back 30 years, he is not today. तो पर्सनालिटी तो बदली जाती है, पर्सनालिटी इम्प्रूव की जा सकती है। आज जो डॉक्टर वैशाली गुप्ता हैं, आज के 5 साल के बाद इससे अलग होंगी, पक्का अलग होंगी। और इस इंटरव्यू का मतलब ही, इस इंटरेक्टिव सेशन का मतलब ही यही है कि आप अलग दिखें। मैं 5 साल पहले कुछ और था, शायद एक माना जाता था, मुझे अभी भी माना जाता है कि नहीं, मैं लोग ऐसा समझते हैं कि मेरे अंदर ईगो है, लेकिन अब आप लोग ज़्यादा जानते हैं कि मेरे अंदर ईगो है कि नहीं है। लेकिन अगर मैं प्रशासनिक निर्णय लेता हूं और वो किसी को नुकसान पहुंचाता है और वो संस्था के हित में है, तो मैं लेता हूं, और उसको लोग ईगो समझते हैं तो समझे, अहंकार समझते हैं तो समझे। तो लेकिन हाँ, परिस्थिति के हिसाब से व्यक्तित्व में परिवर्तन आता है, इम्प्रूव किया जा सकता है। अगला प्रश्न आपका क्या है? So my next question is, how can personality of an individual help us in achieving our goals? This is the only thing named as a personality we decide you will achieve goal or not. Your questions are in a very diplomatic language, but answer is same. You are showing different question. ये चक्रपाणी की टीका कर रही हो, right? The concept जो सूत्र स्थान में चरक संहिता का है वो है। अब उस पर चाहे आप जज्जट की टीका, चाहे आप चक्रपाणी की टीका करा लीजिए, और चाहे सुश्रुत संहिता में डढ़न की टीका करा लीजिए, चाहे गंगाधर टीका चरक संहिता में करा लीजिए, हिंदू जज्जट की उन पर करा लीजिए, अष्टांग पर करा लीजिए, लेकिन विषय वस्तु तो वही है। और पर्सनालिटी ही डिसाइड करती है कि आप अपने उद्देश्य में कितने सफल होंगे और कितने असफल होंगे। और वो जो मेहनत की क्षमता है वो पर्सनालिटी में आती है। जो आपका समर्पण है अपने उद्देश्य के प्रति, वो पर्सनालिटी में ही आती है। आपको आज क्या खाना है वो पर्सनालिटी में आता है। अभी जैसे कि आज आप रसशास्त्र विभाग में पहली बार इस अटायर में आप आई हैं। भाई मैं तो अक्सर आता ही हूँ, ठीक है, तो मेरे लिए तो नई बात नहीं है ना, लेकिन आप पहली बार आई हैं और मेरे ख्याल से अंतिम बार नहीं होना चाहिए, ठीक। तो जब आप पहली बार आई हैं तो आपका मन करेगा कि नहीं, हमें, आपको मैं बताऊं तो मुझे अच्छा लगेगा। और हमारी वो डॉक्टर दीपाली कोडे एट जामनगर, वहाँ पर थर्सडे को वीकली सेमिनार हुआ करता था। तो आई हमारे पास, मैं उसका सुपरवाइज़र, कि सर हम सेमिनार में एलन सॉली के सूट पहन के सेमिनार देना चाहते हैं। मैंने कहा तुम दीपाली मुझे मरवा डालोगी कि अरे जामनगर में तहलका मच जाएगा। बैक में 2002 की बात कर रहा हूँ, हाँ, आज के 22 साल पहले जो हमारी थॉट प्रोसेस थी। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा कि गो एट, चलो मैं ये क्रेडिट डिस्क्रेडिट लेता हूँ, तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी पर्सनालिटी ऐसी, तुम मानती हो कि ऐसा कर सकती हो तो करो। शी प्रेजेंटेड, I encouraged her, not permitted, I encouraged her. In the same way, the personality constitutes everything, right? This, your external appearance is the first impression, then your language, and then your body language. So,
what you can achieve or what you cannot achieve is depending on the personality. बहुत सारे विद्वान लोगों को आपके सामने होंगे, बहुत सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा जानते हैं, very very having a lot of, they are the pool of knowledge. किन विद्यार्थियों तक उनका ज्ञान कहाँ तक पहुँचता है? Whether they are performing in the class? Not. Whether their knowledge is in practicality reaching to the patient? Not. Where is the lacunae? In their personality. They are failed to transmit their knowledge to the scholars. Their manageable knowledge of the healthcare to their patients. थ्योरेटिकल बात कर लीजिए, वो पूरे ज्वर का चिकित्सा सिद्धांत आपको बता देंगे, लेकिन ज्वर का एक रोग ही नहीं ठीक कर पाएंगे। पूरे वो बस्ती के भेद बता देंगे, बस्ती की मात्रा बता देंगे, लेकिन बस्ती लगा नहीं पाएंगे। और ये जो बात आती है वैशाली, वही पर्सनालिटी है। अभी आयुर्वेद में आज कोई नाम नहीं लेना चाहता मैं, नाम मेरे पास आ रहे हैं मस्तिष्क में, लेकिन आज अभी मैं आयुर्वेद में नामों से बचना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं अगले सत्र में आयुर्वेद के भी नाम लूँगा और ठोक बजा करके लूँगा। No problem, sir. हाँ, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका? So, what steps should be taken to continuously improve our personality? What steps one should taken to improve the personality? Yes, one answer is the reading. Reading what? Your Rasat Samuchay? Reading what? Rastarangani or the Saranga Sangita? Yes, these are the required for your. This is the one part of your persona to enrich your knowledge, to enrich your wisdom in the thrust area where you are supposed to excel. But extracurricular reading. वो मैं अपने प्रोड्यूसर अपर्णा सिंह को तो ये नहीं कहूँगा कि कैमरा वहाँ से निकाल करके पूरे कमरे को दिखाओ, कभी ये दिखा देंगे, आज नहीं। तो यहाँ जितनी बुक्स हैं, जितनी हमारे सब्जेक्ट की हैं रसशास्त्र आयुर्वेद की, उतनी ही मात्रा में हमारे इस कक्ष में मित्रों साहित्य की पुस्तकें हैं, राजनीति की पुस्तकें हैं, सामाजिक पुस्तकें हैं, भरी हुई हैं। समय निकाल कर अभी भी देखिए, मेरा एक नियम था, आप हंसिएगा मत, बता रहा हूँ, मेरा एक नियम था कि जितनी बार मैं मीटिंग्स में जाता था, या था नहीं मीटिंग, ये नियम है, और मान लीजिए कि रिन्यूमरेशन उस मीटिंग का सीटिंग चार्ज वो तो बढ़ता रहा है 20 साल में, वो शुरू हुआ 1500 से 2000 से आज 3000 4000 ऐसा कुछ मिल जाता है, फॉर्म भरा जाता है तो कि हाँ सीटिंग चार्ज इतना है। तो मैं ये रूल बनाता था वैशाली, वो जो सीटिंग चार्ज का मुझे दिखता था उसको मैं एयरपोर्ट पर खर्च करके आ जाता था, इस एंटिसिपेशन में कि ये मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिले हैं। और एयरपोर्ट पर मैं क्या खरीदता था? किताबें, मनपसंद टाई, मनपसंद जो मेरा होता था वो एक्सक्लूसिव चीज़ की कुछ भी, तो मैं उन पैसों को एक तरह से अधिकतर बुक्स पे खर्च किया हूँ। हम टीचर्स को 1000 रुपये एकेडमिक अलाउंस पर मंथ मिलता है BHU में, जामनगर में भी मिलता था, यहाँ भी मिलता है। मैं श्योर करता हूँ कि वो 12000 रुपये की किताब ही खरीदी जाए, कुछ और नहीं। तो इस तरीके से जब आप, और इसीलिए बहुत सारी पुस्तकें हैं हमारे पास, आयुर्वेदेतर, आयुर्वेद से अलग हट करके पुस्तकें ही आपको आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करेंगी। पुस्तकें आपका इम्प्रूव करेंगी लैंग्वेज। मैंने क्या कहा? पुस्तकें ही लैंग्वेज। आज या कोई भी बच्चा PG का, UG का, PhD का, कोई टीचर असिस्टेंट प्रोफेसर से प्रोफेसर, फर्स्ट लुक तो उसका यही आएगा ना, ठीक है, जो उसने अटायर पहना है, ठीक है ना। इस पर हम अगले सेशन में बात करेंगे कि क्योंकि मैं देख रहा हूँ करीबन हम लोग 35 मिनट से बात कर रहे हैं, और तो इस पर अभी अगले सेशन में लेंगे। लेकिन इतना कह दूँ कि कपड़े का असर फर्स्ट इंप्रेशन की कैटेगरी में आता है, लेकिन उसमें ये नहीं है कि आप ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे तो ही असर आएगा। आप अगर रेमंड के कपड़े ही पहन के जा रहे हैं तो ही असर आएगा, ऐसा नहीं है। और आप
वुमेन ब्रांड में है या MS ब्रांड में है या किसी भी ब्रांड की आप ब्रांडेड चीज़ें आप पहन के जा रहे हैं तो वही आएगा। नहीं, कपड़ा आपका खाली स्वच्छ होना चाहिए, रंग उसका रंग कपड़े का रंग मौके के अनुकूल होना चाहिए, राइट। जिस रंग के भी आपको, अरे बहुत सारे लोगों को देखा है, मैं ईश्वर की दया से ढेर सारी सिलेक्शन कमेटीज़ में बैठा हूँ पिछले 15 साल से, अजीब अजीब पहन के लोग चले आते हैं एक इंटरव्यू देने, रिसर्च ऑफिसर का, चाहे मेडिकल ऑफिसर का, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का, प्रोफेसर के भी पद का इंटरव्यू लिया है हमने प्रोफेसर होने के तुरंत बाद, तो प्रोफेसर पे भी हमने इंटरव्यू लिया है। वो प्रोफेसर के भी स्तर पर अजीब तरीके से लोग पहन के चले आते हैं। तो आयुर्वेद में जानते हो सबसे पहली ज़रूरत है कि आयुर्वेद के लोगों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट। दिक्कत कहाँ आती है जो मैं कहना चाहता हूँ, अभी तो ठीक है आप नीट से आते हैं, बहुत दिक्कत होती थी। आज के जब 5 साल 6 साल पहले जब BMS के लिए अलग से एग्ज़ाम होता था और उस समय जो एवरेज एज ग्रुप आती थी, जब MBBS के लड़के जाते थे इस कैंपस में तो दिखते थे कि हाँ ये इंटर पास करके आ रहे हैं, और जब BMS वाले बच्चे आते थे तो दिखता था कि हाँ ये 5-5 साल का एवरेज गैप लिए आ रहे हैं इंटर पास किए हुए, अब तक इनका डिग्री कोर्स पूरा हो गया होता, ये बड़ी मजबूरी में BMS करने आए हैं। आज ये स्थिति नहीं है, आपका भी बैच हो सकता है और भी बैच, जब आप लोग जब आते हैं तो BMS में भी अच्छे बच्चे इस टेंडर एज ग्रुप के आने लगे हैं, ये हमारे लोगों के लिए बड़ी प्रसन्नता का विषय है। तो उस समय जब वो जब बच्चे आते थे तो वो अपनी लाइफ से बड़े फ्रस्ट्रेटेड रहते थे, वो 5 अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट के बाद आते थे, है ना, और वो फिर आ करके आयुर्वेद के अध्यापक भी उसमें शामिल हैं, उनको और कूड़मक्ष बनाते थे कि तुम्हारी किस्मत फूट गई कि तुम आयुर्वेद पढ़ने आ गए। लेकिन आज ये स्थिति नहीं है, आज ये है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम आयुर्वेद पढ़ने आए हो, राइट। तो क्वेश्चन ये है कि आयुर्वेद में अभी जो उच्च स्तर पर है, चाहे कहीं भी हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की अभी बहुत आवश्यकता है और बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी, टीचर्स की भी CME कराई जा रही है कंटिन्यूसली, स्टूडेंट्स की भी लेवल पर हो रही हैं, CCRS अच्छे प्रोजेक्ट्स दे रहा है, स्टार 10 दे रहा है, स्पार्क दे रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये सब एक तरीके से आके आपकी प्रतिभा को उभारने के लिए है, क्या करने के लिए है, टू पोटेंशिएट योर इंटेलिजेंसिया, एंड दिस इज़ द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। दिस पोटेंशिएशन ऑफ योर इंटेलिजेंसिया इज़ द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, राइट। चलिए, ये एक बहुत अच्छी बात सर ने बताई है कि एक इन्फ्लुएंसिंग एक्सटर्नल अपीयरेंस के लिए ब्रांडेड कपड़े पहनना ज़रूरी नहीं है। और जो मैं बार बार एम्फेसिस दे रहा हूँ लैंग्वेज के ऊपर, आज आपको 2 लैंग्वेज दिखाता हूँ, इसलिए मैं घर से इन अखबारों को उठा लाया। ठीक, ये टाइम्स ऑफ इंडिया है, स्क्रीन पर आ रहा होगा, टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल, और ये हिंदू है इसका एडिटोरियल, दोनों का एक ही हेडिंग है। और देखिए कि लैंग्वेज का असर कितना होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द लैंग्वेज एंड हाउ मच इट इज़ कैचिंग। तो पहले एक मैं एग्जांपल दे दूँ जो अक्सर मैं दिया करता हूँ क्लास में, दिस हाउ लैंग्वेज इज़ इम्पॉर्टेंट। एक बच्चा अपने घर पहुँचा दिन भर की थकान के बाद, दिन भर अपना काम करके, बच्चा चाहे युवा कह लीजिए, और उसको पानी की आवश्यकता हुई, तो 2 तरीके से कह सकता है और भी तरीके से कह सकता है, लेकिन मोस्टली समझाने के लिए 2 तरीके से, जहाँ मैं आपको लैंग्वेज का इम्पैक्ट बता रहा हूँ। मेरी माँ मुझे पानी दे दो, एक संबोधन दिया उसने, मेरी माँ मुझे पानी दे दो। एक वो दूसरा संबोधन भी दे सकता है, कुछ लोग देते हैं शायद, रेयरली, मगर है जिस ए मेरे बाप की बीबी मुझे पानी दे दो। पर्सन तो एक ही है, लेकिन जो कहने का तरीका है, एक जगह उसने माँ का संबोधन दिया तो उसका इम्पैक्ट, एक जगह मेरे बाप की बीवी उसका संबोधन दिया उसका इम्पैक्ट। तो आप किस तरीके से अपनी बात कहते हैं। तो लैंग्वेज के लिए जो आपने पूछा बेसिक क्वेश्चन कि हाउ टू इम्प्रूव योर पर्सनालिटी, तो मैंने उत्तर दिया था रीडिंग और व्यूइंग। इस इलेक्ट्रॉनिक एरिया में व्यूइंग, आप बड़े बड़े लोगों के वो सुनिए, पढ़िए, क्या इंटरव्यूज़ उनकी पर्सनालिटीज़ के, उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, समय निकाल के पढ़िए 1 घंटे का। अभी तो आप फर्स्ट ईयर में है ना, इसलिए अभी आप मतलब परसों शायद मैंने कहा था कि अभी फर्स्ट ईयर में हो तो मौज कर लो, हाँ,
अभी जब सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आओगी तो ग्रिल होना शुरू हो जाओगी। तो आज सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वालों को देखो, उनको 9 बजे तक 8:30 बजे तक ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, उनको असाइनमेंट्स मिलते रहते हैं, रिसर्च पेपर्स मिलते हैं, ट्रायोलॉजी, अब शिवा भी पढ़ना है, ये भी उनको मैं असाइनमेंट देता रहता हूँ, वो पढ़ के आओ, तुम्हारी वोकैबुलरी इंग्लिश की ठीक होनी चाहिए, राइट। स्पीकिंग, ये खाली बड़े बड़े ऑथर्स की वो मत पढ़ो, स्पीकिंग इंग्लिश के लिए तुम ये नॉलेज पढ़ो जिसमें कि एक नैरेटिव्स हैं, जिनमें डायलॉग्स हैं। तो मैं जो आप कोर लर्नर्स हैं सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में चाहे पीएचडी में, उनको ये भी असाइनमेंट होता है कि आप अमीश मिश्रा को पढ़ के आइए। तो आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है और उसके ये कायदे हैं। तो मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, देखिए एक एडिटोरियल है जिसमें कि भाई सोमनाथ मुखर्जी क्या लिखते हैं, ये चावल इज़ द न्यू ऑयल। अब ये देखिए, इन्होंने राइस नहीं कहा, कहा कि राइस इज़ द न्यू ऑयल नहीं किया, क्या कहा, चावल इज़ द न्यू ऑयल। मैं इसको स्क्रीन पर अगर दिखाने को कहूँ तो ये देखिए, ये है चावल इज़ द, ऐसे अब इसे अखबार पकड़ लो, दिख रहा है प्रोड्यूसर मैडम? अच्छा, चावल इज़ द न्यू ऑयल। ये पर्दे के पीछे ही रहते हैं, एक बार बस पर्दे के आगे आई हैं माइंड द मिनट्स में। तो चावल इज़ द न्यू ऑयल, और सबसे ज़्यादा इनका व्यूअरशिप जा रहा है, नंबर 1 पे है इस समय ये। तो अब ये क्या तुम्हें दिख रही है, एक हिंदी में कहें तो तुकबंदी दिख रही है, चावल इज़ द न्यू ऑयल, ठीक। इससे तुरंत क्या कहना चाहते हैं, मैसेज तुरंत मिल गया। अब यहाँ देखो, ये जो डाटा प्रोटेक्शन बिल आया है उसके ऊपर टाइम्स ऑफ इंडिया में क्या हेडिंग है, दिस विल फिट द बिल फॉर ईयर्स टू कम। दिस विल, जो डाटा बिल आ रहा है, तो लेकिन वहाँ पर इन्होंने वर्ड लगा दिया विल पावर, दिस विल फिट द बिल फॉर द ईयर्स टू कम। वहीं हिंदू इस खबर को किस तरह से दिया है, हिंदू लिखता है एमिड रोज डाटा प्रोटेक्शन बिल टेबल्ड। दोनों में कौन सा अच्छा लग रहा है आपको, तुम ही बताओ, टाइम्स ऑफ इंडिया वाला कि ये हिंदू वाला? सर टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया वाला, क्यों? क्योंकि द सिलेक्शन ऑफ वर्ड जी सर, थोड़ा कैची है। कैची है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा द विल फिट द बिल, द विल फिट द बिल फॉर ईयर्स टू कम। ये क्या लिखते हैं हिंदू, एमिड रोज डाटा प्रोटेक्शन बिल टेबल्ड। तो ये आपकी लैंग्वेज, आप किसी बात को कैसे कहते हैं, आप शोधन मारण को कैसे समझाते हैं, जी शोधन मारण को ही आप क्लास में कैसे परसीव कराते हैं अपने स्कॉलर्स को, ठीक है, या आप किस तरीके से हेडिंग्स डालते हैं। जैसे कि आपका ही मैं कहूँ तो कल तक मैंने इसकी हेडिंग बनाई थी कि ये इंडियन एक्सप्रेस में भी इन्हीं अखबारों के खबरों की हेडिंग्स हैं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं ले आया इनको आज की, आपको बताऊंगा कि शब्दों का कितना महत्व होता है, लैंग्वेज का कितना महत्व होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। तो पर्सनालिटी में, अपनी बात कहने में, ट्रांसमिट करने में, वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वैशाली से जब इन्होंने कहा, हम लोगों ने तय किया कि 3 मतलब कि इस एक सेशन हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट में करेंगे, तो इनका मैंने नाम दिया था पहले कि डेकोर द डॉक्ट्रिन। तो बड़ा टिपिकल था ये, इसका मतलब था कि आपकी जो डॉक्ट्रिन है, जो आपका पर्सोना है, उसको आप डेकोरेट करिए, डेकोर द डॉक्ट्रिन। मैंने कल बदल दिया, अभी आपके पास ही जब ये जाएगा संडे को, तो इसका हेडिंग होगा प्रोसेस द प्रोग्रेस। क्या हुआ था, क्या किया हम लोगों ने, प्रोसेस द प्रोग्रेस। तो आपकी जो प्रोग्रेस होनी है उसकी प्रोसेस क्या है। देखिए, डेकोर द डॉक्ट्रिन एक हायर लेवल पर आ गया कि आपको अपनी डॉक्ट्रिन का डेकोरेशन करना है, तो वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स होगा। एंड प्रोसेस द प्रोग्रेस, ये भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स होगा। लेकिन प्रोसेस द प्रोग्रेस थोड़ा इजी है समझने में। हो सकता है कि सेकंड सेशन का नाम हम डेकोर द डॉक्ट्रिन ही रखें, लेकिन जो एक बार पब्लिक हो गया वो हम नहीं करते, हम हमेशा नया लाते हैं राइट। सो द थिंग्स इज़ लाइक दिस। और लैंग्वेज, देन द बॉडी लैंग्वेज, देन द योर इंटीग्रिटी, डिग्निटी, सब पर हम एग्जाम्पल सहित और प्रैक्टिकलिटी में बात करूँगा। एक सेशन में अभी और जाऊँगा आयुर्वेद के लोगों के लिए पर्सनल, अगला सेशन पूरा आयुर्वेद का ही होगा, ये कोई एग्जाम्पल बाहर का नहीं देंगे। सब आयुर्वेद में जहाँ जहाँ पर्सनालिटी की और परसिवनेस की आवश्यकता है उस पर बात करेंगे।
और निश्चित रूप से आपका आप क्वेश्चन अभी आपके शायद एक दो मुझे और दिख रहे हैं, पूछिए 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 पूछिए। So, in your opinion, what are the key personality traits that are highly valued in workplace? Key personality traits, what is the which is having high value at workplace? I said since the first sentence of this interaction between you and me, your dedication in the compliance of instructions passed on to you by your seniors and your involvement to the request of your loving juniors, how you are helping. So your this attitude to have this a very harmonious environment among the persons who are there. They may be non-teaching staff. आप अपने नॉन टीचिंग स्टाफ को, हम तो हमेशा से ही कहते हैं कि वही आपको असल में सिखाते हैं टेक्निकल काम। आप अपने नॉन टीचिंग स्टाफ को, जैसे कि आप लोग हमारे यहाँ रामाशीष जी हैं, मैं उनको बैचमेट करता हूँ क्योंकि 1994 में मैं आया MD आयुर्वेद करने और वो भी आए यहाँ पर उसी समय लैब असिस्टेंट के रूप में। अभी भी इस डिपार्टमेंट में हम लोग उनका ट्रांसफ़र नहीं होने देते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, आज के करीबन 6-7 साल पहले बच्चे उनको आचार्य जी कहने लगे। अब रामाशीष कोई कहता ही नहीं है, सारे बच्चे उनको, मतलब UG PG UG वालों तो उतना तो नहीं रहता, वो तो ये कहते हैं कि वो जो कराते हैं प्रैक्टिकल वो, लेकिन जो PG और PhD वाले हैं उनको आचार्य जी करके संबोधित करते हैं। दैट इज़ द पर्सोना ऑफ श्री रामाशीष कुशवाहा कि ही गेन द पदवी ऑफ आचार्य जी बाय नन अदर देन द स्कॉलर्स ऑफ द PG and the PhD on the virtue of his deeds, on the virtue of his willingness to help the scholars, not only by his expertise but by his experience too. वो तो रसिया जा रहा था, अभी युद्ध हो गया, उसकी डिमांड थी वहाँ बुलाने के लिए रामाशीष जी की कि 1 हफ्ता रह के आयुर्वेद की दवा, आप लोगों को नहीं पता होगा तो आज बता रहा हूँ, ऑन कैमरा बता रहा हूँ। तो उन्होंने रामाशीष जी ने मुझे बताया कि सर ऐसे ऐसे वहाँ जाना है। मैंने कहा बिल्कुल जाओ। तो इतने एक्सपर्ट हैं कि बच्चे स्वतः अपने मन से उनकी पदवी दे दीजिए आचार्य की। आचार्य मतलब प्रोफेसर। तो इन द माइंड सेट ऑफ द PG and the PhD scholar, the Ramashish is having same reputation what Anand Chaudhary is having, right? So this is the what personality. This is the personality, the real and the rare example of the personality. कि उनके नाम क्या, मेरे नाम का आगे प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ने लगाया, दुनिया भर का मुझे मेहनत करनी पड़ी, इतना टीचिंग एक्सपीरियंस, इतना पब्लिकेशन, क्या क्या, तब मैं प्रोफेसर बना आचार्य, राइट? और वो व्यक्ति आचार्य आपके द्वारा बना। किसकी पर्सनालिटी बेहतर है, मेरी या उसकी? मैं उसकी कहूँगा। आई गेन्ड विथ अ प्रोसेस, ही गेन्ड विथ हिज एक्सपर्टाइज, राइट? तो ये होती है पर्सनालिटी, और ये कहते हैं पर्सनालिटी का डेवलप होना। तो वर्क प्लेस, आप किसी से भी पूछ के आ जाइए IMS में, वो हर व्यक्ति यही कहेगा। रामाशीष के मुंह से आज तक कभी किसी चीज़ के लिए ना नहीं निकला है। एग्रीड और नॉट? एग्रीड सर। एग्रीड। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे नहीं, हम लैब अटेंडेंट हो गए हैं, हम डाक नहीं ले जाएंगे। रामाशीष सबसे सीनियर है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट है, अपने ग्रेड के हाईएस्ट रैंक पे हैं। बताया ना कि मेरे बैचमेट हैं, 23-24 साल से ज़्यादा, 26 साल से, 26 क्या 20, 30, 23, 29 साल की नौकरी होगी रामाशीष की। अब शायद इसके बाद उनका कोई प्रमोशन नहीं है, लेकिन रामाशीष जो है डाक पहुँचाने भी चले जाते हैं, जिसको कि एक रैंक कट लैब अटेंडेंट से ऊपर का आदमी कहेगा नहीं हमारा काम नहीं है। यहीं कहते हैं, इसी विभाग में लोग कहते हैं, उनके नाम नहीं लूँगा, कह देते हैं लोग कि नहीं मेरा काम नहीं है। अपने पद का तो काम आता नहीं है, जिस पद पर पहुंच गए हैं, और नीचे वाला भी नहीं करेंगे और ना उस पद का करेंगे। तो ये जो वर्क प्लेस है ना, वहाँ पर एक ही चीज़ चलती है, हारमोनी, राइट? पीस, हारमोनी और कंप्रोमाइज। इसमें हम लोग फेल हैं। उपदेश तो हम दे रहे हैं, लेकिन हम लोग फेल हैं। अब आपने प्रश्न पूछ दिया तो मुझे उत्तर देना पड़ रहा है, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग फेल हैं। We are not maintaining harmony at the moment, in the present time. Everyone is responsible for this disharmony. नहीं, हंसने की ज़रूरत नहीं, मैं शर्माता नहीं हूँ। तुम भले शर्माओ कि सर क्या बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, मैं जो फैक्ट है मैं तो बोल रहा हूँ कि we teachers are failed at the moment. कि
वर्क प्लेस पर हारमोनी नहीं है हमारे बीच में, और इसके लिए कोई एक व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सभी रिस्पॉन्सिबल हैं, सभी। तो प्रश्न ये है, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, हर वर्क प्लेस, तो वर्क प्लेस पर पता नहीं खतरनाक क्वेश्चंस लेके आई हैं आप डॉक्टर वैशाली। ठीक है, अभी तो सबसे मेरी अग्नि परीक्षा मित्रों अगले फ्राइडे को होनी है, यूजी के बच्चे आ रहे हैं, और वो क्या पूछेंगे मुझे नहीं पता है अभी, लेकिन मैंने भी उनको इनवाइट किया है। अमन चौहान BMS 4th ईयर का, हाँ, लड़का बैठा होगा जहाँ आज डॉक्टर वैशाली बैठी हैं, और मेरी खटिया खड़ी कर रहा होगा। आई अंडरस्टैंड इट, लेकिन नहीं, मैं सत्य बोलूँगा, इतना तो मेरा खुद से वादा है। वो है ना किसी हिंदी फिल्म का डायलॉग कि तुम मुझे भूल नहीं सकते और मैं तुम्हें भूलने नहीं दूंगा, ऐसा कुछ है ना, वो सुनील शेट्टी का। तो भाई मैं बोलूँगा तो सत्य ही। अब लड़का आएगा जो पूछेगा, लेकिन ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट आयुर्वेद में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और अभी मैंने इसको कतई टच नहीं किया है, मैंने खाली एग्जांपल्स दिए हैं अभी। ये से इस पर तो कम से कम अभी हमको बात करनी है कलर कम्बिनेशन पे। हाँ, अजीब अजीब कलर का लोग पहन के चले आते हैं, जो मैच ही नहीं करता, बस पहन के डाल के आ गए, पता नहीं कि कब क्या पहनना है, वो भी पहन के चले आए। अरे एक दिन मैं इसी बसवेश्वर महादेव के मंदिर पर अभी 1 महीना पहले किसी अपने स्टूडेंट से बात कर रहा था, एक लड़का विजुअल आर्ट तो सामने निकला, मेरे और स्टूडेंट के बीच में से निकल गया। मैंने रोका, भाई रुक। वो रुका, मैंने कहा कहाँ पढ़ते हो? कहा एम विजुअल आर्ट में सर, एम विच कर रहे हैं। हमने कहा बहुत अच्छे। हमने कहा यार ये नहीं सीखे हो कि जब 2 लोग बात कर रहे हो, उनके बीच में 1.5 फीट की जगह है, तो उनके बीच से नहीं जाते हैं, तुम उधर से भी जा सकते थे, तुम इधर से भी जा सकते थे, तुम बीच में ही से क्यों निकले भाई मेरे? ये सीखा नहीं है आपने? वो लड़का, आप विश्वास करिए, हैं यहाँ पर चश्मदीद गवाह, वो लड़का एकदम से उसकी पता नहीं उसको क्या हुआ, मेरा पैर छू पकड़ लिया कि सर आज तक ये बात हम लोगों को किसी ने समझाई ही नहीं कि ये भी एक व्यक्तित्व का हिस्सा होता है। मैंने कहा भाई नहीं समझाई तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं समझा रहा हूँ ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपके हैं कि आपको कब उंगली दिखा के बात करनी है, कब आपको ऐसे बात करनी है, कब आपको भौहें चढ़ानी है। ये हैं बहुत सारे आते हैं, बच्चियाँ हैं जो बात करेंगी अपने टीचर से तो ऐसे नज़रें झुका करके बात करेंगी जैसे कि उनको भाभी ससुराल वाले लड़की देखने आए हैं। तो ये अब वो जो मैं इसको इस रूप में बांटता हूँ कि जो टाउन गर्ल हैं और टाउन बॉयज़ हैं, जो सिटी गर्ल्स हैं, जो सिटी बॉयज़ हैं, जो कॉस्मोपॉलिटन गर्ल्स हैं, जो कॉस्मोपॉलिटन बॉयज़ हैं, इन तीनों के ब्रॉटअप में बड़ा अंतर है। ये चीज़ अक्सर पाई जाएगी टाउन गर्ल्स के पास, वो आपसे आई टू आई नहीं बात करेंगी, उनको एक साइनेस हमेशा रहती है। उनको मैं कह दूँ वैशाली की तरह से टाई लगा के आओ, वो 5 बार कांपेंगी। लेकिन वैशाली नवोदय की प्रोडक्ट हैं, वैशाली BHU से BMS है, बनारस में रही हैं, BHU और ये अपने BHU कैंपस में देखती हैं कि इस तरीके के अटायर में 100 लड़कियां इनको रोज़ दिखती हैं जो अपने डिफरेंट प्रोफेशनल कोर्सेज में हैं। तो वैशाली के लिए ये कोई अलग की बात नहीं है, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी बात है जो पहली बार शहर में आए हों PhD करने अपने बलबूते पर। तो ये सारी चीज़ें पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर आती हैं कि क्या सिलेक्शन करना है, किन शब्दों का प्रयोग करना है, कैसे बोलना है, अरे कैसे उठना बैठना है, बैठते समय कुर्सी पर कैसे रहना है, इंटरव्यू देते समय हाथ ऐसे रख देना है कि टेबल पर ऐसे रखना है। ये सब अगले सेशन में बात करेंगे। हो सकता है कि आपकी जगह पर कोई और स्टूडेंट हो, आई मीन को लर्नर, लेकिन इस पर अभी हम और देंगे। और कोई क्वेश्चन है शायद? एक और? One more question. हाँ, yes, please go ahead. So can you share any experiences where an individual's personality positively impact their career growth? So वैसे तो आप पहले ही 7 रिनोड पर्सनालिटी के नाम ले चुके हैं, फिर भी सर कोई ऐसा इंस्टेंस जो आप शेयर करना चाहें? रिपीट करिए तो अपना क्वेश्चन फिर से। सर हाँ, रिपीट करिए। कैन यू शेयर एनी एक्सपीरियंसेस वेयर एन इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी positively impact their career growth? Of course, I have thousands of examples in my teaching career of 23 years, and right from the Ayurveda. And I have witnessed our core learners who came to us right from Jamnagar to BHU as a PG first year,
And when nowadays when they are principal of the different Ayurvedic college, either in the government or the private, or in different positions at the moment after 20-21 year, they are the best example of their individual growth by improving their personality. They remember all time when they were with us, not with me, with us in these institutes of the Jamnagar or anywhere else, what they were when they joined as a MD Ayurved first year scholar, and what they are now in their professional career and even in their personal career. Hundreds of examples, but in the next session. No problem, sir. Not today now, because this is the 1 hour I think we have completed, and it is much more. इसको हमको कम करना था, 40-45 मिनट पे ही रहना था, लेकिन आपने तो इतना इंटरेस्टिंग बना दिया कि 40-45 मिनट चल गए. और एक हिंदी फिल्मों के ही गाने के साथ पूरा कर दूं. अचानक देखो, जो मुझे जानते हैं और हमारे साथ हमारी क्लासेस में इंटरेक्शन किए हैं, तो उनको पता है कि मेरे एग्जांपल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं. तो शायद एक फिल्म, एक गाना है ना बहुत पुराना सा, कि आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज़े बयां हैं. तो यही पर्सनालिटी है. आप देखिए, इसको उस परिप्रेक्ष्य में मत ले जाइए कि एक स्पेसिफिक परिप्रेक्ष्य में, कि नहीं किसी फीमेल और मेल की खूबसूरती और उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है उस पर नहीं सोचता है. मैं कहना बहुत बड़ी चीज़ कर रहा हूँ, गागर में सागर भरने की कोशिश कर रहा हूँ मित्रों. क्या कि आप जो दिख रहे हैं, एक बार जो आप दिख रहे हैं, जो भी हैं आप दिख रहे हैं, चाहे प्रोफेसर हो चाहे यूजी के स्टूडेंट हो, एक बार जो आप दिख रहे हैं, तो आपसे भी बेहतर आपके अंदाजे बयां है. आप अपनी बात को कहते कैसे हैं, आप अपनी बात को किन शब्दों में रखते हैं. रखते समय आप क्रोध से भरे हुए हैं, बहुत आसान है कहना, लेकिन अब मैं नियंत्रण करता हूँ. आपके कोई कहीं आपको असंतोष है तो आपको उसको क्रोध में कह रहे हैं कि बड़े शांत भाव से तर्क रख रहे हैं. ये सब पर्सनालिटी डेवलपमेंट का हिस्सा है. फिर मिलेंगे, बात करेंगे इस इशू पर, लेकिन 1 महीने बाद, क्योंकि तब तक मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि पर्सनालिटी पर क्या हुआ. आप इनकी तरह जीवनी पढ़िए, लगाइए 1 घंटे का समय और देखिए कि आप इनसे क्या ग्रहण करते हैं. तो डॉक्टर वैशाली, a lot of appreciation and adoration goes to you. You deserve it. You make this session very interesting and I think very enjoyable for everyone. टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि this is the first step of the process, the progress. It is fruitful, meaningful and purposeful, and I encourage you and I wish you all the best for your very bright future in the coming days as a PG scholar of the Rasas and the Bhesaj Kalpana and product of the Banaras Hindu University. Wish you all the best with a very adorable personality. चलिए एक नाम ले लेता हूँ, दीपिका गुणावत मैडम को. तो पता नहीं ये चैनल से आवाज़ पहुँचेगी कि नहीं. एक पर्सोना है, आप मिलिए दीपिका गुणावत से. आयुर्वेद में एडवाइज़र रही हैं, मतलब ऐसे में बहुत सारे नाम ले सकता हूँ. वुमेन का मधुलिका बनर्जी, जो मतलब आयुर्वेद से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं, राइट. ऐसा करियर बनाइए. I will try my best. थैंक यू, ऑल द बेस्ट. Thank you so much for sharing your valuable insights with us, sir. This session will undoubtedly be very beneficial for those who wants to enhance their personality, including me, sir. A big thank you to all the viewers for showing so much love and support. Please don't forget to press the bell icon so that you do not miss any of our videos. Thank you. Have a nice day. तो कार्य के प्रति समर्पण ही व्यक्तित्व है. फाइनल इस सेशन का, कार्य के प्रति समर्पण ही व्यक्तित्व है. नमस्ते, साधुवाद, आभार, धन्यवाद अपने प्रोड्यूसर अपर्णा सिंह को भी और होस्ट डॉक्टर वैशाली गुप्ता को भी और आप सबको भी. नमस्ते.